Assalamu alaikum everyone. Welcome to our second session. Just to review, in the last session we have had a general introduction. I have given my introduction. We discussed the course outline, the general introduction of the course, the contents that we'll be specifically focusing on. I have just uploaded the recorded lecture number 1 and have uploaded the course outline and the recommended books, 2 of the recommended books in your Google Classroom. So I hope that you have gone through the first lecture by now, and you have also gone through the course outline so that you have a better idea of what we will be doing throughout this semester. So let's now formally begin with our course. And in this session, I'll be focusing on the general approaches to writing, the main approaches to writing, and the purpose for which, the different purposes for writing, so that you have an idea about what writing is, what are the different ways through which learners learn to write and improve their writing skills, and what are the different types of writing, what are the different goals or aims for writing. So that's something that we'll be discussing in this session particularly. Okay, so let's begin. I'll just share my screen and the PowerPoint presentation, and I will upload this presentation and this recorded lecture as well. Okay. Okay, so let's begin. Okay, so now when we talk about writing, what do you think of writing? I mean, what is writing for you? If I ask you, if I could ask you, and if you had we had an opportunity to discuss what writing is basically, then we would have been in a better position to discuss. I would have been able to know your views, but since we have some limitations, so let's have a discussion on what generally writing is. We all are familiar that how to write, how to hold a pen, what are alphabets, and we have been doing writing. But now I'm talking about writing in the general, in its truest sense, that what writing actually is. So we all have random thoughts in our mind, and we have some logical thoughts in our mind. So writing is, you can consider writing as thinking made visible. So you have a lot of ideas in your mind, but through writing you try to make whatever your thoughts are into something concrete, into something visible, so that it can be shared. And also, it not only so that it could be shared, but when you write something, when you jot down something which is there in your mind, this helps you clarify a lot of things that are there in your mind, but you might not be very clear about your thoughts. So when you learn to write and put your ideas, thoughts and opinions into writing, you are able to revise and improve and reach more clarity of your ideas. तो जब आप किसी चीज को लिखते हैं, तो जो आपके रैंडम थॉट्स दिमाग में होते हैं, बहुत हैपजर्ड वे में होते हैं, लेकिन जब आप लिखने के जरिए से आप उसमें एक क्लैरिटी जो है वो सीखते हैं. अच्छा जी, अब राइटिंग जो है वो ओवरनाइट किसी को भी नहीं आती. मतलब देयर आर फेमस राइटर्स, देयर आर novice writers, there are students who there are people who write for expressing themselves, even if they're not writing it for getting it published. So it's not that simple. It's basically a process which involves different steps, and it's a complex cognitive behavior and a non-linear process of discovery. So ye, through writing you learn to think and you discover, and it's not just simple, it's a proper thorough process through which you discover. अच्छा जी, अब जो राइटिंग का पूरा प्रोसेस है, इट बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी में जो है वो आपकी प्री राइटिंग की स्टेज आती है, जिसमें यू फर्स्ट हैव टू थिंक व्हाट इज माय गोल, व्हाट डू आई विश टू अचीव, why am I writing, who are my audience, and then what is it that I want to talk about, what is the kind of or variety of resources that I need to use. And planning, then the stage of planning is very important, because it is
through the stage of planning that you will be able to actually identify कि आप किस बारे में बात करना चाह रहे हैं और क्या क्या पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं। फिर वो ड्राफ्टिंग का एक फेज आता है जिसमें आप एक्चुअल मैसेज को लिखते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, एंड देन रिवाइजिंग, विच इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, और उसकी इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले अप्रोचेस टू राइटिंग आपने अपने कोर्स आउटलाइन में देखा होगा। आप लोगों का जो कोर्स है, आप लोगों के लिए जरूरी है दैट यू डू थिंग। आपको बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल डिटेल में नहीं जाना, मगर सिंस ये एक अप्रूव्ड कोर्स आउटलाइन है आपकी यूनिवर्सिटी की और इसमें ये ये कंटेंट है कि अप्रोचेस टू राइटिंग, तो जो दो मेन अप्रोचेस टू राइटिंग है मैं सिर्फ उसका जिक्र कर देती हूँ और हम किस पे फोकस करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक तो होती है प्रोडक्ट अप्रोच टू राइटिंग। तो उसमें क्या होता है दैट द फोकस इज ऑन एंड प्रोडक्ट। ये वो राइटिंग है जो मोस्टली हमारे यहाँ मेट्रिक सिस्टम में बच्चों को कराई जाती है, स्कूल्स में 9 मेट्रिक में, इंटर में। इसमें फोकस क्या है कि बस आपने एक चीज याद कर ली है और आपको ये रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में पास होने के लिए। तो फोकस सिर्फ ये है कि आपको ये अचीव करना है, ये आपका एंड है और ये बस आपको उसमें ये लिख के एग्जाम में पास होना है। ठीक है, और इसमें फोकस जो है एक इंडिविजुअल पे है। तो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं लिख रही हूं, बस मुझे ये रिसीव हो गया, ये एंड मिल गया, ये गोल अचीव हो गया, दैट्स इट। अगेन फोकस क्या है, एक ड्राफ्ट है, इसमें कोई एज सच डिफरेंट ड्राफ्ट नहीं है कि ये पहला ड्राफ्ट है अब इसको मैं रिवाइज करके दूसरा ड्राफ्ट है, बिकॉज फोकस ये है कि बस ये एक टॉपिक है, ये एक लेटर लिखना है और ये एक अचीव करना है गोल हमें, बस। ठीक है, और प्रोडक्ट अप्रोच में बहुत ज्यादा जो फोकस होता है वो स्ट्रक्चर पे होता है कि ये ऐसा लिख दो, इसमें ये ग्रामर हो, उसका ये रूल फॉलो हो रहा हो। तो ये बेसिकली एक पर्पस, एक टाइप है, एक अप्रोच है राइटिंग की, जिसमें हमें क्या अचीव करना है राइटिंग के थ्रू, वो हमारा एम है। अच्छा, इसमें जो मैं आपको जो राइटिंग पढ़ाऊंगी या सिखाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी वो है प्रोसेस अप्रोच पे बेस करती है, क्योंकि इससे आप असल में लिखना सीखेंगे। इसमें इट्स नॉट कि आप बस सिर्फ याद की हुई चीजों को रिप्रोड्यूस कर पाएंगे कि अगर आपने बचपन में कोई ऐसे याद किया था क्रिकेट पे, मेमोरेबल क्रिकेट मैच या टेररिज्म या मतलब जो हमारे इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स में टॉपिक आते हैं, तो उसमें सिर्फ ये नहीं मेरा मकसद है कि आपने याद की हुई चीज को लिख दिया, बल्कि आप असल में खुद से क्या लिख पा रहे हैं, दैट इज व्हाट आई विश टू अचीव। अच्छा, अब जो प्रोसेस अप्रोच है इसमें जो एम्फेसिस है वो प्रोसेस पे है। ठीक है, अब ये कोलैबोरेटिव इन नेचर होती है। कोलैबोरेटिव से क्या मुराद है कि आप लिखते हैं, आप शेयर करते हैं, आप फीडबैक लेते हैं। सिर्फ एक ड्राफ्ट नहीं होता कि बस मैंने ग्रामर के सही स्ट्रक्चर लिख दिया, मैंने लेटर लिख दिया, मुझे मार्क्स आ गए, बस हो गया। इसमें फोकस है कि आप उस प्रोसेस के थ्रू पूरी राइटिंग को सीख रहे हैं। तो आप पहले प्लानिंग के फेज में ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आप आउटलाइन बनाते हैं, आप पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, वो आप किसी से शेयर करते हैं। पेयर में भी काम होता है, आप अपने फ्रेंड से, अपने पीयर से शेयर करते हैं, अपने कलीग से शेयर करते हैं, क्लास फेलो से शेयर करते हैं, किसी से भी शेयर करके फिर खुद भी उसको रीड करते हैं, रिविजिट करते हैं अपने आइडियाज को, उसको रिवाइज करते हैं, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट आप लिखते हैं। तो इट्स बेसिकली मोर कोलैबोरेटिव इन नेचर एंड द फोकस इज मोर ऑन आइडियाज कि मेरे आइडियाज क्या हैं। इफ दिस इज द टॉपिक देन व्हाट आर द ideas, what are the approaches that I can take to handle this topic, किस तरह से मैं content develop कर सकती हूँ, that is the focus। ठीक है, तो probably इस कोर्स में मेरी पूरी राइटिंग की जो कोशिश होगी वो ये होगी कि मैं प्रोसेस अप्रोच के थ्रू आपको बिगिनर लेवल से लिखना सिखा सकूं, ताकि इवन जब ये कोर्स खत्म हो जाए तो आप इंडिपेंडेंटली कोई भी आपको आगे अपना रिसर्च प्रपोजल हायर स्टडीज के लिए बनाना है, आपको अपनी जो है स्कॉलरशिप में आपकी जो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते हैं जब बाहर के लिए, तो उसमें उसका बहुत अहम रोल होता है। बहुत स्कॉलरशिप्स वगैरह जैसे आती हैं, फुल ब्राइट आती है, राजमस आती हैं, डिफरेंट स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा जो एक मार्जिन होता है, बहुत ज्यादा जो एक वेटेज होता है वो दिया हुआ होता है आपके मोटिवेशन लेटर को या आपके लेटर ऑफ पर्पस को। तो हर चीज के लिए जो लोग लिख नहीं पाते वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं कि भाई तुम मेरी एप्लीकेशन लिख दो या आप मेरा फॉर्म फिल कर दें, आप इस तरह से कर दें। तो मेरा पर्पस ये है कि 3 या 4 महीने जितने भी हमारे पास हैं, तो आप उसमें एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर लें कि आपको बेहतर तरीके से
इजी इंग्लिश लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करना आ जाए, सो दैट इट्स बेनिफिशियल फॉर यू इवन इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। तो ये हम प्रोसेस अप्रोच पे फोकस करेंगे, उसके थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। और ऑब्वियसली इसमें फिर आपके टास्क होंगे, आपको मुस्तकिल चीजें करती रहनी है। मैं अगर लेक्चर आप बस मेरा ये 40 मिनट्स का सुन रहे हैं और क्लास में या अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद आपने बंद करके रख दिया, तो आपको राइटिंग नहीं आएगी, आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, क्योंकि लैंग्वेज ऐसे नहीं आती। तो आपने अगर कहीं भी ये बचपन से देखा है ये लैंग्वेज सेंटर्स में या बाहर, जो मैंने ग्राफिटी हुई भी होती है, दीवारों पे भी लिखा हुआ होता है लैंग्वेज सेंटर्स के बाहर के 3 महीने में फर अंग्रेजी बोली है, तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। अंग्रेजी या कोई भी जबान इस तरीके से नहीं आती। वो जितना आप उस जबान का एक्सपोजर आपको होता है, जितना आप एक्चुअली करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्रैक्टिस करते हैं, उतनी वो जबान आती है। तो ये कोई शॉर्टकट नहीं है लैंग्वेज सीखने का, मैं सिर्फ आपको एक डायरेक्शन दिखाऊंगी। आई विल बी अ फैसिलिटेटर, लेकिन करना आपको खुद है चीजें। ऑब्वियसली आई विल बी देयर टू गाइड, आई विल बी देयर टू हेल्प, आई विल बी देयर टू गिव द फीडबैक, लेकिन जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे इस प्रोसेस में, यू वुडंट बी एबल टू लर्न। ठीक है, अच्छा जी। अब अच्छा, हमने राइटिंग प्रोसेस की बात करनी है कि राइटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो राइटिंग प्रोसेस में ये है कि हाँ, राइटिंग प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज द प्री राइटिंग फेज। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन एज द फेज ऑफ प्लानिंग। तो आप हाउ डू यू प्लान, इफ दिस इज द टॉपिक, इफ इट्स एन आर्गुमेंटेटिव essay, so what do I wish to achieve, what is my purpose, if I want to persuade someone, what should be the content, and you randomly think about ideas in this stage, in the first stage, that is the stage of pre-writing. The second stage, which is of drafting, you actually compose the message. In this stage, after you are done with the phase of thinking, discussing, brainstorming, then you compose the message. थर्ड स्टेज इज ऑफ रिव्यूइंग। यू रिव्यू वट एवर यू हैव रिटन, कि मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या मैंने वाकई वो लिखा है जो लिखना था, क्या मैं डिविएट तो नहीं हो गई असल टॉपिक से। दैट इज दिस फेज। एडिटिंग इज ऑब्वियसली यू एडिट योर कंटेंट, यू माइट find something to be irrelevant to your topic, तो आप उसको एडिट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। आपको लग सकता है कि कोई चीज है जो आपको ऐड करनी है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द फेज इन विच यू एडिट योर कंटेंट। फिर प्रूफ रीडिंग का फेज है। प्रूफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम पीपल, स्टूडेंट्स स्पेशली, दे डोंट टेक प्रूफ रीडिंग सीरियसली. They just write and do their assignments at the last moment and they just submit. Please from this stage develop a habit of proofreading your writing. एक और चीज जो मैं आपको वक्तन फवक्तन जो है आपको याद दिलाती रहूंगी, वो ये कि जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में अपना कोई भी असाइनमेंट कर रहे हैं, तो आपके मार्जिन्स प्रॉपर होने चाहिए, आप टेक्स्ट को जस्टिफाई करें, आपका फॉन्ट साइज प्रॉपर होना चाहिए, आपने प्रॉपर पैराग्राफिंग होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप आगे जाके जॉब एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर लिखेंगे, तो एक बिजनेस इंग्लिश का कोर्स होता है, उसमें बच्चों को सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि सीवी कैसे बनाते हैं, कवर लेटर कौन सी जॉब के लिए कैसे लिखा जाता है, किस तरह से अपने स्किल्स के बारे में बताया जाता है। तो अगर आप बिल्कुल उल्टे सीधे छोटे फॉन्ट में लिख रहे हैं, वो आपकी कोई पैराग्राफिंग सही नहीं है, कोई स्पेसिंग नहीं है लाइन के बीच में सही, तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन देता है। इट रिफ्लेक्ट्स नॉन प्रोफेशनलिज्म, अनप्रोफेशनलिज्म ऑन योर पार्ट। तो प्लीज डेवलप अ हैबिट। प्रूफ रीडिंग के स्टेज में आप देख रहे होते हैं कि कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कोई लैंग्वेज ब्लंडर जो है वो तो नहीं है, फॉर्मेटिंग तो खराब नहीं है, पैराग्राफिंग है प्रॉपर नहीं है, हर चीज मैंने बस एक ही पैराग्राफ में तो नहीं डाल दी। सो दैट इज द स्टेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन कम्स द स्टेज, लास्ट स्टेज, विच इज द स्टेज ऑफ okay, so which is basically the stage of sharing, and that is for feedback. So when you receive feedback, you are basically able to improve, and it's a collaborative process as well. तो इस तरह से आप सीखते हैं। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगी प्री राइटिंग स्टेज में। प्री राइटिंग स्टेज में द फर्स्ट इज योर टॉपिक। सो इन योर सेटिंग, इंस्टीट्यूट, एकेडेमिया सेटिंग, यू आर गिवन द टॉपिक। पेपर है, एग्जाम का एसे है, कुछ भी है, सो यू आर मोस्टली गिवन द टॉपिक, बट देन समटाइम्स द टॉपिक इज वेरी ब्रॉड. So your
task in the pre-writing stage, that is before you actually begin writing, sit and think. Narrow down your topic to a specific angle. For example, the topic could be bullying. ठीक है, सिंपली बस दे दिया है कि राइट एन एसे ऑन बुलिंग. नाउ बुलिंग इज अ वेरी वास्ट टॉपिक. So now you have to decide either you are going to focus on the types of bullying, or you are more concerned with presenting the solutions to overcome or counter bullying in educational institute or in any other setting, or maybe you are dealing with cyber bullying. So that is very important. And then in this pre-writing phase, researching, analyzing and selecting relevant information is also very important. So on any topic there could be plethora of information, but within for a 500 or 400 words essay you cannot write about everything, right? So in this stage you basically research that okay, I am going to cover this topic from this angle, and for that I will be including this information in this way. तो ये बहुत जरूरी है आपको रिसर्च करना. आपको प्री राइटिंग स्टेज पे अगर आपने अच्छे से टाइम लगाया है, सोचा है, आइडियाज डेवलप किए हैं, तो लिखना इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा. मगर अगर आप सोच ही नहीं रहे तो फिर ऑब्वियसली आपको राइटर मतलब आपको हेजिटेशन भी होगी, आप कॉन्फिडेंस भी लैक करेंगे. सो दिस स्टेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर इसी स्टेज में आप ये भी सोचते हैं ऑडियंस. हु आर माई ऑडियंस, हु एम आई राइटिंग फॉर? इज माई पर्पज ओनली टू just cram and just produce something? No, it's a task. So is my audience teacher? Am I referring to only my class fellow, or I am talking in a general sense? बहुत ज्यादा जब आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, यू वुड हैव दिस विश कि मे बी आई शुड गेट इट पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर. कोई सोशल इशू है तो मुझे उसके बारे में बात करनी है, मुझे अपना ओपिनियन शेयर करना है, तो मैं उसको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल में पब्लिश करवाऊं. तो आपकी जनरल पब्लिक भी ऑडियंस हो सकती है. ऑडियंस का पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत दफा आप अपने कंटेंट को ऑडियंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, तो कोई कंटेंट आपके कॉन्टेक्स्ट में सही हो सकता है, लेकिन अगर वो कोई बाहर की ऑडियंस है या कोई और सी ऑडियंस है तो वो उसके लिए वो कंटेंट सही नहीं होगा. तो इसलिए आप हमेशा ये सोचें कि हु इज द ऑडियंस, हु इज गोइंग टू रीड दिस, कैन आई टॉक अबाउट दिस इन दिस वे और शुड आई चेंज द वे? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फिर ये सोचना कि इज योर ऑडियंस फेमिलियर विद द टॉपिक. सो लेट्स सपोज कि मैं आपको कोई परसुएसिव स्पीच करने कह रही हूँ आपके क्लास फेलोज के सामने, और आप आके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे स्पीच दे रहे हैं. तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज है जो शायद आपके इंटरेस्ट की हो, लेकिन आपके क्लास के स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्या है, वो बीबीए, वो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको तो शायद पता ही ना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. तो ये सोचना कि क्या मेरे ऑडियंस को पता है, बैकग्राउंड नॉलेज है, रेलेवेंट बैकग्राउंड नॉलेज है, इससे भी आपका कंटेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. अगर तो आपके ऑडियंस को एक जनरल आइडिया नहीं है उस इंफॉर्मेशन का, तो उस टॉपिक का, तो आप उसके बारे में पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देंगे. और अगर जनरल टॉपिक है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप प्रॉब्लली उसको डिस्क्राइब करने की इतनी जरूरत नहीं है, बिकॉज आप इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो आप directly जो है you can talk about the effects of global warming, because considering कि your audience is the university student, you can assume that they know what global warming is. ठीक है, तो narrow down your topic, research and analyze the information that you wish to include, and assess your audience. Audience profiling is very important. Either you are speaking about something or you're writing about something. If you're writing an article in Dawn, you know the audience is the general public. So you will select your content that is relatable to your audience. तो अगर अभी कराची में सबने देखा है कि बारिश के बाद क्या मसाइल हुए हैं और आप न्यूज़पेपर में इस बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके ऑडियंस जनरल पब्लिक है, तो आप मोस्टली उन चीजों के बारे में लिखेंगे जो हर किसी ने फेस की है. आप अफ्रीका में रेन में क्या होता है वो नहीं लिखेंगे, राइट? क्योंकि आपकी ऑडियंस कराची की ऑडियंस है, आपकी ऑडियंस पाकिस्तान की ऑडियंस है, तो आप उस तरह से कंटेंट को डेवलप करेंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर दैट द स्टेज ऑफ प्री राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द एक्चुअल स्टेज ऑफ राइटिंग. ओके, अच्छा जी, दिस इज एन इनकरेक्ट आई थिंक प्लेसमेंट, ये वाली है.
अच्छा जी, brainstorming and outlining. In this stage, it's also important for you to brainstorm ideas on a piece of paper using mind mapping. तो अभी हमारे पास क्लासरूम सेटअप और बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको बताती कि एक टॉपिक है, इसको हमने बीच में लिख दिया है कि फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब हम उसके अराउंड बबल बना देते हैं कि इसमें मैं ये भी बात कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, ये भी। तो वो एक रैंडम जो जो आइडियाज आ रहे हैं आप जल्दी से उसको जॉट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, अब आइडियाज तो बहुत सारे आ गए, बट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आप उन आइडियाज को एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर में करें। ठीक है, सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज और योर आर्ग्यूमेंट्स इनटू एन आउटलाइन फॉलोइंग अप a logical order that should follow a proper structure। ठीक है, एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ्स होंगे, हर बॉडी पैराग्राफ में एक आइडिया या चले दो आइडिया, जब अगर लंबा टाइम वर्ड लिमिट ज्यादा है, वरना आपके लिए 5 पैराग्राफ ऐसे तो 3 बॉडी पैराग्राफ है, तो उसमें 3 मेन आइडियाज आपने डिस्कस किए, एंड देन अ प्रॉपर कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से रैंडम आइडियाज हैं, उनको यू कैन पुट देम इनटू सब ग्रुप्स एंड लेटर ऑन फॉर एवरी पैराग्राफ यू कैन चूज वन सब टॉपिक एंड मेक अ पैराग्राफ ऑन दैट। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ इस तरीके से नजर आती है कि आपने पूरा जो है ना हाउ टू माइंड मैप, इसको अगर आप देखें तो आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, फिर आप उन वर्ड्स और स्ट्रक्चर को यूज करें जो रेलेवेंट है आपके टॉपिक से। ठीक है, फिर आप उसको आइडियाज को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और फिर आपको लिंक करना है, उन आइडियाज को लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी राइटिंग में कोहेरेंस नहीं है, हर पैराग्राफ में कुछ रैंडम बात हो रही है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो दैट इज नॉट अ गुड राइटिंग। तो उसके लिए फिर कोहेसिव डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है, कनेक्टर्स का इस्तेमाल होता है, तो वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे होपफुली। अच्छा जी, फिर ड्राफ्टिंग है, तो ड्राफ्टिंग के जो फेज होता है, इसमें आप जो है ड्राफ्टिंग के फेस में यू फोकस ऑन द कंटेंट एंड द स्ट्रक्चर। ठीक है, और एंड यू राइट फ्रीली, क्योंकि आपको आगे एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग की स्टेज है। तो पिछली सेशन में मैंने आपको बताया कि ग्रामर और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और आपको डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर का अंदाजा होना चाहिए। लेकिन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू राइट जस्ट बिकॉज यू थिंक यू डू नॉट हैव एक्सेप्शनल ग्रामेटिकल और लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, एक चीज होती है फ्री राइटिंग, मैं आपको एक टास्क भी दूंगी जिसमें आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है। बहुत दफा वी डू नॉट राइट बिकॉज वी have a fear of being judged negatively, and we have a fear that somebody will read our writing and it's not up to the mark and people will make fun of it, so that keeps us away from writing। तो वो आपको अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करने देगा, अपना कोई अगर आप में टैलेंट है तो वो भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसके लिए राइट फ्रीली। ठीक है, आगे के स्टेजेस में जब आप रिव्यू पे हैं, जब आप एडिटिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आप ग्रामेटिकल एरर्स जो है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको आप सही कर सकते हैं। अगर लेटर स्टेज में आपको लग रहा है कहीं पे कि टेंसेस इनकरेक्टली यूज हुए हैं, इनकंसिस्टेंसी है टेंसेस में, दैट इज समथिंग that can be overcome in the later stages। ठीक है, तो वो आप लेटर स्टेजेस में उसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाती है ड्राफ्टिंग की स्टेज। ड्राफ्टिंग की जो स्टेज है, इसमें है सबसे पहले एक ओपनिंग पैराग्राफ आएगा। ये मैं आपको हर तरह की राइटिंग में बताऊंगी, जब हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे होंगे उसमें मैं अलग तरीके से बताऊंगी। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग में तो ऑब्वियसली एक पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, फिर आप उसके बाद ऐसे सीखेंगे, तो लेकिन जनरल जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक ओपनिंग पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन है। इन द इंट्रोडक्शन यू बेसिकली प्रेजेंट और डिफाइन द टॉपिक। ठीक है, एंड टू मेक इट कैची और अट्रैक्टिव फॉर योर ऑडियंस, फॉर द रीडर, you can begin with a challenging question, a quotation or a story or some interesting facts, but do not forget to just acknowledge the source। अच्छा जी, अगर आप फैक्ट्स दे रहे हैं, फिर बॉडी है जिसमें अब आपके ऊपर है कि मे बी मोस्टली तो ऐसा होगा कि मैं लिख दूंगी कि राइट अ 5 पैराग्राफ ऐसे, बट अगर 300 वर्ड्स का ऐसे है और किसी ने नहीं भी लिखा है, फॉर एग्जांपल आइट्स का अगर आप टेस्ट दें तो उसमें ऐसे आता है, तो प्रॉब्ली 250 वर्ड्स का ऐसे है, तो प्रॉब्ली आप 4 से 5 पैराग्राफ का ऐसे लिख लेते हैं। अब बॉडी पैराग्राफ है तो 3 बॉडी पैराग्राफ है, सो यू हैव टू प्रेजेंट वन आइडिया इन वन पैराग्राफ। हर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होगा, यू बिगिन विद द टॉपिक सेंटेंस, सो द रीडर इमीडिएटली नोज दैट इन दिस पैराग्राफ यू आर गोइंग टू डिस्कस दिस आइडिया। अब आपने
टॉपिक सेंटेंस में बता तो दिया कि दिस इज योर मेन आइडिया. फॉर एग्जाम्पल, माई फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इज दैट बुलिंग हैज एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स. तो अब मैं, चूंकि मैं बुलिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ, तो मैंने ये बता दिया. अब मैंने, दिस इज माय टॉपिक सेंटेंस, ये मैं पहले पैराग्राफ में ये बात कर रही हूँ कि बहुत ही बुलिंग का एडवर्स साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बुरा होता है. अब मैं इसको सपोर्ट कैसे करूंगी? अब मैं उसकी सपोर्टिंग डिटेल दूंगी. मे बी मैं कोई स्टैट रेफर कर सकती हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस दीज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम डिप्रेशन बिकॉज दे आर बीइंग बुलीड इन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. या मैं जनरल एक ओपिनियन अपना दे सकती हूँ कि मोस्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स यू नो दे लैक कॉन्फिडेंस और दे आर शाय, they have developed trust issues because they were bullied, they are bullied in their education or they were bullied in their childhood, so it has adverse psychological impact. तो एक मेरा टॉपिक सेंटेंस में मैंने बता दिया कि मैं इस वाले पैराग्राफ में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को कवर कर रही हूँ, और मैंने उसको एक्सपेंड करते हुए सपोर्टिंग डिटेल्स के थ्रू भी बता दिया कि इस तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. ठीक है. अब कनेक्टिंग वर्ड्स, डिस्कोर्स मार्कर्स आप यूज करें. सो यू आर मूविंग ऑन टू अनदर पैराग्राफ, यू कैन राइट मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउएवर, नेवरदलेस, एक कनेक्शन बनाने के लिए. ठीक है. अगर आप कोई ऑपोजिट आइडिया डिस्कस करें, सो यू कैन राइट ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्ररी टू दिस. ठीक है. इसी तरीके से कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में आप पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं टू सम अप इन अ नटशेल. ठीक है. अच्छा जी. तो जो एंडिंग है, in the ending or in the concluding paragraph, you have to summarize the writing. And then it's also very important for you to reinforce the argument or the main idea in your conclusion. You have to rephrase the main idea. ठीक है. फिर एक चीज, इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट होती है, लेकिन वो जब ऐसे होगा तभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है. एंड एंड विद अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. तो जिस तरह से इंट्रोडक्शन आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसी तरीके से कंक्लूजन में भी एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सो दैट योर स्टैंस और योर मेन आइडिया इज क्लियर. अच्छा जी. फिर आती है द स्टेज ऑफ रिव्यूइंग, विच इज येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. यस. सो यू हैव टू रीरीड योर राइटिंग टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिस्टेक्स और ऑल्सो टू इवैल्यूएट योर कंटेंट. So, for example, reviewing would include, did I actually write on the assigned topic and use relevant arguments and details to support my point, or did I deviate from the main topic? Does each paragraph logically follow and connect to what is written before? Which means, are my paragraphs logically connected to एक smooth transition है एक paragraph से दूसरे paragraph में, या बस random ideas हैं? ठीक है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीकिंग में तो इट्स फाइन दैट यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ, नेचुरल स्पीकिंग है, मतलब ऑन द स्पॉट आप बात करें तो यू कैन मूव बैक एंड फोर्थ, और यू कैन जस्ट यू कैन मूव फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर and then go to another topic. But writing mein you have some limitations. It has to be very proper logical order for to be considered as a good and professional writing style. And then, did I use a variety of sentence structure? ठीक है. Did I avoid repetition? Sometimes we keep on using or repeating the same words, or we keep on repeating the same idea throughout the writing. So that is, if it's speaking, it's fine. You may repeat some of the phrases, clauses, and even the idea sometimes. But in writing, repetition is considered a flaw, right? It's not considered. Sometimes repetition is used as a literary device कि आप reinforce कर रहे हैं, तो वो एक device के तौर पे use होती है, लेकिन सेम वर्ड्स रिपीट तो नहीं हो रहे, ये आपको देखना है. तो सिनोनिम्स आप यूज करें. उसके लिए अगेन आपको वोकैबुलरी पे काम करना है. अगर आप लोगों को जरूरत महसूस है, तो मैं एक वोकैबुलरी की बुक है 1100 वर्ड्स यू नीड टू नो, आई थिंक बाय बैरन. तो वो बहुत अच्छी बुक है. उसमें 365 डेज के हिसाब से वोकैबुलरी है. तो हर दिन के लिए 5 वर्ड्स है, और उन वर्ड्स को उन्होंने डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया हुआ है. तो उससे by the end of the year you would be able to have a considerable number of vocabulary आपकी एक होगी. फिर हर 5 दिन के बाद एक repetition है. उन 5 दिन में जो आपने नए नए 5 वर्ड सीखे हैं उनका है. तो वो week wise divided है. तो वो बहुत अच्छी बुक है. तो उसके आई हैव द PDF ऑफ दैट बुक, तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगी. तो अगर आप डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. एंड अगेन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ मोटिवेशन. कोई आके आपको हर चीज के लिए चेक नहीं कर सकता. आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं,
you are an adult, you have to develop your study skills, and you have to give time to areas which need improvement. So if you think that you have weak vocabulary, you have very less vocabulary, and that is a barrier for in your writing, तो फिर आप उस barrier को overcome करें, so that you are able to express yourself. ठीक है. फिर did I use adjectives and adverb for text enrichment? Because if you're describing something, you need to use good adjectives. If you're telling more about the action or the verb, you need to use good adverbs. So see if you have used good vocabulary. अच्छा जी, फिर एडिटिंग की फेज आ जाती है. एडिटिंग अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज. सो इन दिस फेज यू नीड टू जज योर राइटिंग फॉर लैंग्वेज एंड टेक्निकलिटीज. और कंटेंट हो गया है वो आपने पहले वाली फेज में देख लिया है. हियर योर फोकस इज ऑन identifying if there are some technical issues, or if there is any grammatical issue. And if I have followed a proper word order rule, each there is a proper subject and there is a predicate. If I have used a variety of verb tenses correctly and appropriately, कहीं पे मैंने वो subject verb agreement में तो मसला नहीं किया हुआ. So you are going to do that, and then use a variety of punctuation marks accurately, and edit for text mechanics. Mechanics क्या होता है? Capitalization, italicization, numbering, abbreviations. ये proper आपको देखना होता है कि आपने सही से capitalize किया है जहाँ पे करना चाहिए, italicize किया है जहाँ पे there is a need. तो वो mechanics overall जो है वो आप edit करते हैं. And then is the stage of proofreading. इस stage में you trace out all the small mistake, and you must proofread your final draft at least 3 times. कोई नंबर नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन I feel that. अच्छा जी, then you share your writing and you take feedback. Please take the feedback in a constructive manner, in a positive manner. Don't take it personally, because the feedback will help you improve. ठीक है. अच्छा जी, so keep practicing, and also keep practicing, and also keep लर्निंग. अच्छा जी, फिर पर्पस की एक मेरे पास आपकी पर्पस वाली डिस्कस करना था हमें कि व्हाट इज योर पर्पस ऑफ द पर्पस. देयर आर डिफरेंट पर्पस ऑफ राइटिंग. So that is something that I wanted to discuss, but I believe that I sort of do not have it in this slide, maybe, probably. So okay, just a second, just give me a second. Okay. So actually I wanted to discuss purpose in this video. I'm just unable to find the slides of purpose right now. I don't know, I thought it was just there in this one, but let me give you a brief sort of introduction. I mean, brief idea of what do I mean by purpose, what are the different purposes of writing. So there are 3 main purposes. Basically we'll be focusing on 2 purposes. One is to inform. So when your purpose is to inform, you are writing to inform about something, then at that time you just present information. ठीक है. For example, you can say that XYZ candy have a chocolate, I'll just read out to you, on the inside, and a candy shell that comes in different colors on the outside. So you're just telling कि भाई ये वाली candies हैं, ये ऐसी होती हैं. Just an example. But if you say that M&Ms are the most delicious candies in the world and you should really buy a pack whenever you travel, तो here आप सिर्फ ये नहीं बता रहे कि उसमें क्या है, you are actually convincing your audience कि ये इस तरह से होती हैं और आपको ये करना चाहिए. तो this is how you sort of try to do that. You sort of talk about the purpose again. अच्छा जी,
अब इंफॉर्मेटिव स्पीच है या इंफॉर्मेटिव राइटिंग है, यू विल जस्ट गिव डिफरेंट इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ बुलिंग, के देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिंग एंड यू आर टेलिंग अबाउट के there is cyber bullying and there are different types of bullying, so you're just informing about the types of bullying. Or what if you're just telling what is global warming, so you're just informing that this is global warming and this is how it happens or something like that. But if your purpose is to persuade or to convince that bullying should be stopped or these measures should be taken to stop bullying, so here your purpose is to persuade, to convince your audience that okay, this is how bullying should be dealt with, or this is how bullying should be overcome. So that is very important again. Okay, and then comes the third type of writing is for entertainment. You sort of write to entertain, for comic relief or this sort of thing, but obviously we'll not be doing that. We'll be focusing on information and your purpose. So though I think I missed some of the slides here, but I will just in a while I'll just show you one slide that I have. So okay, so here I will share this one. This slide, we'll go through this slide. See, there are different types of writing and there are different purposes for that kind of writing. For example, what is the dominant purpose in different types of writing? So if it's a novel, novels are mostly to entertain, but again, they inform as well. तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है. बट इफ इट्स एन इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेसिपीज, द पर्पज इज टू इन्फॉर्म. तो फिर वो आपका पर्पज है, तो आपका राइटिंग स्टाइल डिफरेंट होगा. आप उसमें स्टेप्स, अब रेसिपी है तो आप उसमें स्टेप्स बता रहे होंगे, बिकॉज योर पर्पज इज टू इन्फॉर्म योर ऑडियंस. न्यूज़पेपर है तो आप न्यूज के बारे में डिटेल की जो इंसिडेंट हुआ है वो बता रहे होंगे, बिकॉज अगेन योर पर्पज इज टू इन्फॉर्म. यू आर नॉट कन्विंसिंग एनीवन टू टेक अ स्टेप और बिलीव इन व्हाट यू आर सेइंग, राइट. अच्छा जी, persuasion क्या होती है कि you want someone to do something and you want them to believe in what you are saying. You want to change their behavior or change their feeling or their opinion about something. तो election speeches जो है वो example है persuasion की. Advertisements जो है उसमें आप convince कर रहे होते हैं कि this is the product that you need, this is the product that you want in your life. तो that is also a persuasive speech. ठीक है. इसी तरीके से अब स्टोरीज हैं तो वो इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं, वो एंटरटेनिंग हो सकती हैं. दैट डिपेंड्स. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग एंड देयर आर डिफरेंट पर्पस फॉर राइटिंग. सो यू हैव टू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू प्लान योर कंटेंट considering your purpose. So if your purpose is to inform, then you should provide relevant information about that particular topic. But if your purpose is to persuade, then you have to have very strong and cogent arguments to convince your audience this is the time we should do this. For example, if your topic is the world needs more tolerance, so you want to convince your audience that we have become very intolerant. Everywhere there are riots going on the basis of religious differences, on the basis of different ethnicities or language group. So we need more tolerance in this world. And then you will refer to different facts that in this year this much riots or took place because of religion, or sectarianism was promoted, and these much lives were lost. This is the impact of intolerance, and this is the time that we need to get rid of all the bigotry or intolerance that we are surrounded with, and we need to make this world more tolerant. तो ये जो है एक एग्जाम्पल है. ठीक है. अच्छा, तो अब मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है राइटिंग का. अब जो आपका टास्क है वो ये है कि इस सेशन के बाद आप तो एक ग्रुप में, जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है, उसमें हर बच्चा जो है वो अपने आप को एक इंट्रोड्यूस करेगा, जिस तरह से मैंने इंट्रोड्यूस किया है. आप अपना नाम लिखेंगे, अपने बारे में लिखेंगे, एक पैराग्राफ में आप मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, so that I know you. और दूसरा ये है कि आपको एक जनरल डायरी जो है आपको मेंटेन करनी है. अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो डायरी किसी भी तरीके की हो सकती है. एक छोटी सी आप डायरी जो है वो ले लें. कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोगों की आदत होगी वो पहले से ही डायरी लिखते होंगे, मोस्टली लोगों की नहीं होती. आई हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग डायरी सिंस अ वेरी लॉन्ग एज एंड आई मेंटेन जर्नल.
अच्छा जी, तो आपको एक डायरी अपने पास रखनी है, एक जर्नल जर्नल मेंटेन करना है। उसका जो पूरी थीम है वो है पेंडेमिक एंड माय लाइफ। ठीक है, तो अब कुछ लोग हैं जिन्होंने पेंडेमिक में दे स्टार्टेड राइटिंग, और उन्होंने अपना जो भी फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं, कैसे लाइफ चेंज हुई, इसके बारे में दे ऑलरेडी रोट। बट अगर आप पहले से नहीं लिख रहे, तो अब आप daily just write a page in which you talk about how post pandemic or post corona your life has been changed। यूनिवर्सिटी में डिफरेंट तरीके से क्लास हो रही है, किस तरह से आपकी लाइफ इम्पैक्ट हुई है, तो अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट मेंटेनिंग अ जर्नल। उससे ये होगा कि जो आपकी हेजिटेशन है विथ रेफरेंस टू राइटिंग, जो आप हेजिटेट करते हैं राइटिंग में, जो आपका कॉन्फिडेंस लैक करता है, तो अगर आप रोज एक पेज लिख रहे हैं तो you'll be able to overcome that lack of confidence। अगर if we get to have a physical class, तो आप अगर चाहें तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपना जर्नल, बट अगर आप नहीं चाहें तो आप अपने तक रख सकते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि यू बिगिन फ्रॉम समवेयर, आप लिखना शुरू करें, और मैं चाहूंगी कि आप फ्री राइटिंग करें। तो जो जनरल राइटिंग है उसमें जो है आपको फ्री राइटिंग की अपॉर्चुनिटी है, आप खुल के लिख सकते हैं, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ फियर ऑफ बीइंग जज्ड। ठीक है, तो ये आपका आज टास्क है, अब से टास्क है कि एक तो आपको रीडिंग शुरू करनी है, न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, कुछ भी। आपको एक बुक जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे और आप मुझे लिख के बता देंगे कि दिस इज द नॉवल दैट यू विल बी रीडिंग। ठीक है, तो वो इस पूरे सेमेस्टर में एक बुक आपको पढ़नी है ऑफ 300 एटलीस्ट 500 पेजेस। ठीक है, और दूसरा है कि आप सब जर्नल लिखना शुरू कर देंगे, दैट इज फॉर यू। आपका जर्नल कोई नहीं पढ़ा, कोई जज नहीं करेगा, कोई आपको वो नहीं करेगा। अगर आप चाहें तो मुझे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं कुछ फॉर्मल टास्क दूंगी, फिर ऑब्वियसली वो तो आपको करने ही है, और फिर उसमें तो मैं आपकी राइटिंग पढ़ूंगी। ठीक है, तो आई होप दैट वी हैव हैड अ गुड इंट्रोडक्शन सेशन। आपको समझ आए कि हम चीजों को किस तरह से लेके चलेंगे, और क्या आपकी कोर्स आउटलाइन है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। And we'll formally begin with tasks from the next session, but right now choose a book that you're going to read in this semester। सोशल हो सकती, इशू पे हो सकती है, पॉलिटिकल हो सकती है, नॉवल हो सकता है। ठीक है, तो वो एटलीस्ट 400 to 500 पेजेस की वो बुक होगी, वो जो आप पढ़ेंगे। और आप सबको जर्नल एंट्री मेंटेन करनी है, डायरी एक छोटी सी मेंटेन करनी है। इफ यू वांट टू शेयर इट विथ मी और मैं आपको फीडबैक दे सकूं, तो आप उस हिसाब से लिखिएगा। अगर आपको सिर्फ अपने लिए लिखनी है, लेकिन एटलीस्ट सब मुझे दिखाएंगे, सब मुझे बताएंगे कि वो लिख रहे हैं। ठीक है, so I'll see you in the next session, and I hope that you people are good students and you will work upon your skills। So see you, thank you।